have our special guest for today's show. जी हाँ, मैंने कहा था कि हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी ऑडियंस को उनसे मिलवाएं और पैनल में उन्हें ऐड करें. So now the guest who is joining is a very important person. He is the one who has taught the whole world. जी हाँ, पूरी दुनिया को उन्होंने एक important चीज सिखाई है, सावधान रहें, सतर्क रहें. Through his creativity and unparalleled content delivery, he has shown us a way to keep safe. He's charming. He is loved by everybody. He is a favorite of millions of people. मैं आप सबसे मिलवाना चाहती हूँ बिना किसी delay के. Let's welcome Mr. Anup Soni to today's show. Hi Anup, we are so happy to have you. Hello, everyone. Thank you so much. I'm very happy to be in this esteemed company with learned doctors. So I'm very fortunate for this opportunity. Thank you. Thank you so much, Anup. It is indeed a pleasure and delight to have you on today's show. और सबसे पहले आप आज हमारे साथ हैं, तो सभी ऑडियंस मेंबर्स की तरफ से जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और आपसे जो सबसे पहला मेरा सवाल है अनूप, वो ये कि like we all are so excited and we are curious to know how you navigated your personal and professional life in the COVID time. I'm sure, we have very learned and educated doctors here guiding the right thing. But yes, as a common person, as an individual, especially the kind of work we do, there are no less than 100 people at a time on the sets when we are shooting. So, in fact, I was shooting in Meerut when this happened, and around 21st or 22nd of March, we kind of packed up everything and we came back to our own cities because 25th March, the lockdown started. Everything was very new. We didn't know what to do. But I think the basics, which I have been following and people around me and in my family, is that wear your mask, keep sanitizing, wash your hands. So touchwood, we all have been saved only because of following these basic protocols. वाओ. सो आपने जैसा बताया कि बेसिक प्रोटोकॉल्स, ये जान के मुझे लगता है कि डॉक्टर रजनीश कपूर वुड आल्सो बी वेरी हैप्पी बिकॉज मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक हिम हैव बीन doing a very rigorous task of treating patients as well as creating a lot of awareness in Yeah. people Baba, about if you allow me, Hi, yes. hi, Anup. This is Dr. Rajneesh. I'm a Yes, cardiologist Dr. at Bob. Vedanta. Yeah, How are you, sir? I'm fine. Great to have you. Great to have you here on this panel. And I just wish to ask the same extension because I have seen and I can well imagine the kind of work once you do. There are lots of people, 100, 200 guys, the light man, the cameramen, and we are still not sure that who's taking care in what manner and who's going after these schedules, where they are going and from where they are getting the exposure. So just one thing. So as far as once the vaccines came, so were you really pushing everybody that if some shooting is going on, were you telling them that go and get vaccinated, this is important, and were they really following that? That is one point which I like to know. Sir, actually, when we started, I remember I started shooting first in August 2020, around August. I shot in June also, but that was just for a one day. In fact, we did a small short film which is available on YouTube called The Relationship Manager. It was basically based on because the domestic violence was also very prominent and happening around us, and there were a lot of news that during the first lockdown there were a lot of domestic violence issues happened. So there was a short film which we wanted to shoot and send it to the audience. So that was for one day we shot, but I started shooting regularly from August 2020. That was the first, and the vaccine had not started by then. So we had obviously film industry is always in the news, and how we approach our work. So you won't believe we had such strict rules. I was shooting in Rajasthan in Ranthambore. So before we left from Bombay, each and every person from the unit was tested. RT-PCR test was done.
Once we reached there, there was a quarantine of 3-4 days, and then every fifth day we used to get tested again. Uh, And the rule was that no, when we used to enter the set, so there was an, say for example, we are staying in a hotel, and there were some locations within the hotel only. So when we are entering the shooting location, before that all the basic what do you call that, thermal checking, your oximeter checked, your fever was checked, and if anybody is not on the satisfactory level, he was made to wait, and he was, tested again after some more time. So we used to follow, and each and every person who's not acting, actors will only remove their mask when they are in front of camera, but right. otherwise the rest of the unit will follow the mask protocols. Everything was sanitized. There were like sanitizers, like every 6 feet there was a bottle of sanitizer on the set. So, Right. and to answer your second question, when the vaccine started, yes, everybody, in fact, the film industry, the producers themselves organized, because there was little shortage of vaccine initially, and people don't know. A lot of people, you can understand people like who are into the light department and the setting department, the spot boys, they didn't even know how to go online and book the slot for themselves. So the producers, the unit members themselves organized the vaccine centers at their offices before the shooting started. So we tried our best, and everybody today now almost whoever comes at shoot, they are either double vaccinated or at least one dose is done. I think Anup, one compliment to you. We have seen your crime patrols hosting the crime patrol. That has been a wonderful run, and I believe it could have been the longest run as an anchor. I'm not sure about this, but the whole India has watched, and really, I think they are fan of you anchoring that show. I'm glad, sir, people liked it. Yes, I hosted for almost 8 years non-stop, but in 2018 I took a break because as an actor, you can understand, you know, as a creative person, you need some change as an Yeah. actor. So I took a break, but I'm glad people liked it, and I tried my best because I somewhere down wanted to send a message that crime is not a solution for any of our problems. That will not solve the problem. Even at that time of pandemic also, I kept telling people, don't bother about others. There were a lot of arguments. अरे कोई मास्क नहीं लगाता है, मार्केट में जाओ कोई मास्क नहीं लगाता है, सड़क पे जाओ. I said, don't bother about them. The problem is that we start getting into this, अरे कोई भी तो नहीं लगा रहा है. So it's not about कोई भी तो नहीं लगा रहा है, आप अपना लगा लीजिए, बस वो बहुत है. You should this not. is the this is the big issue in India. Yeah. If one person is jumping a red light, the three or four or five who's following, they would also jump a red light. So if we start looking at ourselves only and start following a discipline, I think that's the thing, everybody would start following that. So No, I somehow, completely Anup, agree. I have a question for you that you are an inspiration to millions. You're a household name, you're inspiration to millions. So what is Anup Soni's mantra for success? I think it's just being we have two very learned doctors with us. They can, the kind of work doctors have done in this. I'm sure common people have understood the value of doctors, and I hope if they have not, they should better understand now, because आई थिंक जिस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन था, मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड फॉर एवरीथिंग. बट इस पैंडेमिक ने ये बताया हमें कि देखिए हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम घर रह सकते थे, हम अपने आप को बचा सकते थे. लॉकडाउन है तो रेस्ट्रिक्शंस के बिना भी हम अपने, अगर मुझे बाहर नहीं जाना है तो मेरे पास ये चॉइस थी. पर आई थिंक डॉक्टर्स हैव टू वर्क डे एंड नाइट इवन इफ दे वांट दैट कि ओके नहीं मुझे नहीं जाना है, दे डिडंट हैव अ चॉइस. And they with full honesty and with full dedication, they were there helping people. I can, it's really, मतलब मैं सिर्फ कहने के लिए या ये एक स्लोगन की तरह से नहीं कह रहा हूँ, but I genuinely feel that we have to salute to our doctors and our medical fraternity, our the nurses and the ward boys and every person who's working at the hospitals. आज हमें हॉस्पिटल में जाने से भी डर लगता है, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार बहुत जरूरी नहीं है तो नहीं जाते हैं. People have delayed their basic routine yearly tests also. Normally people go for their कि नहीं यार अभी रहने देते हैं. But I think hats off to doctors. तो इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि ये हमारे आसपास ही है.
हम सब अपने आप को इंस्पायर करते हैं कि जो काम हमें दिया गया या जो हमारी ड्यूटी है उसको हम लोग अगर 100% दें। अगर मैं एज एन एक्टर कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ओपन प्रोफेशन, मतलब अगर डॉक्टर रजनीश कल चाहें या डॉक्टर विजय कल चाहें तो वो मेरे प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इनके प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। मुझे उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो हमारा फील्ड ऐसा है कि जो बहुत ओपन फील्ड है, जहाँ पे सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, जहाँ पे बिकॉज you don't need any qualification to enter our profession. You don't need a certificate or a diploma or a degree to enter our profession. Anybody and everybody is your competitor. So for us to keep our mind sane, to keep ourselves inspired by think that okay, I know my job, I will give my 100% to my job, whether the success comes to me, और उसके भी सक्सेस के भी आप समझ ही सकते हैं कि बहुत लेवल्स हैं, यू नो, देयर इज नो एंड टू सक्सेस आल्सो, कि कल को मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन जाऊं, बहुत बड़ा हीरो बन जाऊं, मेरी सारी फिल्में हिट हो जाएं, लेकिन देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल आल्सो क्रॉस दैट फेज एंड देयर विल बी न्यू एक्टर्स कमिंग इन एंड टेकिंग योर प्लेस। तो मुझे लगता है कि ये एक सेटिस्फैक्शन हो मन में कि मैंने जो काम किया, छोटा किया, बड़ा किया, मैं बड़ा एक्टर बना या छोटा एक्टर बना, ये सेटिस्फैक्शन कि मैंने जितना काम किया उसमें मैंने अपना 100% दिया। आई गेव माय फुल ऑनेस्टी टू दैट पर्टिकुलर जॉब, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई डिड। That is most satisfying for me, and I think that it's a journey. I never feel that my profession as an actor is a destination कि मुझे किसी मकाम पे पहुंचना है, क्योंकि कल को अगर मैं एक बड़ा हीरो बनता हूं तो फिर मेरे सामने एक और बड़ा हीरो होगा मेरे लिए बेंचमार्क, कि मुझे उससे बड़ा बनना है, तो उसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड टू दैट। सो आई जस्ट कीप माई सेल्फ बिजी विद द फैक्ट दैट कि जो काम करो उसको 100% दो, वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है उसको भूल जाओ, जाने दो, काम करो बस अब। So normally एक वो saying है, so if somebody has reached a pinnacle or achieved a big target, so somebody asked him, so how do you feel and what's the best part of this? So he answered, the best part of this was the journey and not the achievement. And Absolutely. also even the best part was the companionships in the journey, you know. So journey is always more exciting than achieving a target. Once you achieve a target, you have achieved, you have reached a level. So then what next, you know? But while you are moving towards the target, I think that journey is the real attraction and more exciting thing for anybody, you know. So Completely agree with you, sir. Completely yeah. agree with you. एंड जर्नी प्लेजरेबल बन जाती है जब हम लोग जो है नेगेटिविटी को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, नेगेटिविटी को किनारे करते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जर्नी और ज्यादा प्लेजरेबल हो जाती है। फिर हमारा यही एक मंत्र होना चाहिए कि हम नेगेटिविटी को छोड़ करके आगे बढ़ते रहें और ये जर्नी हमारी जो है प्लेजरेबल रहेगी। To you, Anupis, what are your tips for managing COVID-related stress? Yeah, I think that has also been a very big issue because कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ पे फर्क तो पड़ा है, बिकॉज शायद ये माहौल हमारी जनरेशन ने और हमसे पहले वाली और हमारे बाद वाली जनरेशन ने ये देखा ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये यू नो, कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपनों से मिल नहीं सकते, यू नो, यू कांट मीट योर फ्रेंड्स। वो एक अजीब सा एक जो डर है ना, अभी भी है, वो ऐसा नहीं है, वो अभी भी ऐसा लगता है कि आप किसी से गले मिलें नहीं मिलें क्या करें। तो अभी रिसेंटली मैं एक अपनी शूटिंग की रीडिंग के लिए गया था, तो वहाँ डायरेक्टर, आदत है ना हमें हाथ बढ़ाने की आदत है, मिलते ही हाथ बढ़ाते हैं या फिर गले, तो वो उन्होंने कुछ हाथ मिलाया, मैंने कुछ ऐसे किया, तो वो हम कंफ्यूज थे, तो ये सर यार ठीक है चलो जो भी है दैट्स ओके। सो यू व्हाट, सो वो एक चीज जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, हमें ये समझना जरूरी है कि हाँ यार ये हालात ऐसे हैं, यहाँ नेगेटिविटी बहुत सराउंड कर रही है, तो मैं अपने आप को कैसे डाइवर्ट करूँ चीज़ों में। मुझे लगता है कि वो डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं या आप अपने इंटरेस्ट का कोई काम करते हैं, आपको फिल्में देखने का शौक है, पढ़ने लिखने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, यू नो, समवेयर यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं, इनफैक्ट जैसे मैं अभी सच बात बताऊं तो ये सेकेंड वेव के बाद मेरे बहुत सारी शूटिंग्स ऐसी थी जो
बिल्कुल इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन होती गई। और मुझे ये लग रहा था कि ओह माय गॉड यार, ये कैसे होगा। और अभी क्या हो रहा है, बिकॉज द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर, सो ऑल द वर्क व्हिच वाज गेटिंग पोस्टपोन्ड एंड नाउ इट्स कमिंग टुगेदर, एंड एज एन एक्टर यू फील अरे यार मुझे तो ये सारे काम करने थे, बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड यस टू दीस वर्क एंड नाउ दे हैव कम टुगेदर, एंड इवेंचुअली आई हैव टू चूज, कोई ना कोई छूट जाएगा एक आध काम मुझसे, बिकॉज सब लोग अभी शूट करना चाहते हैं। तो यू नो यू हैव डेट क्लैशेस एंड इट इज अ डिप्रेसिंग मोमेंट प्रोफेशनली, अरे यार ये अच्छा काम था, ये अब छोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको चूज करना पड़ेगा कि यार इसको पहले कमिटमेंट किया था। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मेरे अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शायद ये तकलीफ होती है। कोई और अगर किसी प्रोफेशन में, तो यू नो जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, जो रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, उन सबके लिए भी काफी सेटबैक रहा होगा। बिजनेस लॉसेस बहुत हुए हैं लोगों को, यू नो इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत रहा है लोगों पे। तो अब हम जिस सिचुएशन में हैं, जो जिसकी जितनी मदद कर सकता है वो जरूर करे। मेरी कोशिश तो यही थी कि ऑब्वियसली हम सबके अपने अपने यू नो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ फैमिली मैन, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे जरूर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामने वाले की मेंटल हेल्थ को आप मदद कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात से डिप्रेस थे, स्पेशली जिन्होंने यू नो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, पीपल हु हैव फाइनेंशियल स्ट्रेसेस। आई थिंक उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं, अगर आप किसी की फाइनेंशियल मदद कर देंगे थोड़ी सी, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल भार है, वो जो स्ट्रेस है, वो कम होगा। तो ये टाइम था एक कलेक्टिव एफर्ट का, एक कलेक्टिवली सामने आकर लोगों की मदद करने का। एंड आई एम श्योर मैं हूँ या कोई और हैं, जो सब लोगों ने अपने अपने लेवल पर काम किया है। जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा लोग किस तरह से मदद भी कर रहे थे एक दूसरे की, यू नो द रिलीजियस प्लेसेस आल्सो केम आउट एंड हेल्प ईच अदर। तो शायद मुझे लगता है ये वक्त ने हमको ये सिखाया कि यार दूसरों से, हर आदमी से कंपटीशन मत करो। हम सब अकेले पड़ जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये सिचुएशन ने सिखा दिया है कि कई बार आपके पास सब कुछ है, सारी लग्जरीज हैं, लेकिन आपको फिर भी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये लेसन हम सबके लिए है, ये पेंडेमिक, कि लेट्स नॉट बी सेल्फिश, लेट्स नॉट बी सो सेल्फ सेंटर्ड। जरूर अपने बारे में सोचिए, अपनी चीज को पहले प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन ये भी कोशिश कीजिए कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ अपने लिए, उस प्रोसेस में अगर मैं अपने आसपास के लोगों का भी कुछ थोड़ा अच्छा कर दूं, तो शायद मुझे एक ज्यादा सुकून मिलेगा, और सामने वाले को भी एक थोड़ी सी मदद होगी। तो ये एक लेसन बहुत बड़ा था हम सब के लिए, जो मुझे लगता है अब अगर हम प्रैक्टिस करें, जब ऐसा ना हो कि सिचुएशन भूल जाए एंड देन वी आर बैक टू द सेम रूटीन, एंड देन अगेन वी आर सेम सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस, उससे बाहर निकलें। मुझे लगता है हमारे सुनने वालों के लिए भी, और मैं अगर समझूंगा तो मैं भी, यू नो आई कैन ऑल्सो टॉक टू पीपल अराउंड मी, कि कोशिश हमारी यही है कि सब लोग बेसिक जो एक प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं कि यार आपने अगर वैक्सीनेशन लगवा भी लिया है, तो मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। तो लेकिन कहीं ना कहीं सर, जो लोग इसको सिंसियरली फॉलो भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साइट भी हो गए हैं। जैसे मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, आई ऑलवेज कैरी अ स्प्रे बॉटल विद मी, जिसमें जो हमारा किसी जमाने में वो जो मेकअप में हमारा वाटर स्प्रे होता था ना, मेकअप करने से पहले फेस वॉश, जो अगर आप किसी बार्बर शॉप और किसी सैलून में जाते हैं जो स्प्रे होते हैं, वो स्प्रेज मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। और मैं इतना साइक्ड हो चुका हूँ कि अगर मैं किसी दिन घर से निकलूं और वो मुझसे सैनिटाइजर स्प्रे घर पे रह जाए, तो मैं इमीडिएटली आई लुक फॉर द केमिस्ट शॉप एंड बाय अ न्यू वन। तो मेरा ये जानना है कि हम इस चीज का जो ध्यान रखते हैं वो कितना रखें, कि क्या हम किसी हैंडल को टच किया है हमने, या हमारे घर पे कोई पार्सल आता है बाहर से, यू नो यू हैव योर ऑनलाइन डिलीवरीज और यू आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, तो उसमें क्या ध्यान रखा जाए इन चीजों में। ये मैं बहुत कॉमन चीजें पूछ रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि हर आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि बाहर से मैंने खाना ऑर्डर किया, अब उसके क्या मैं बॉक्सेस को, कंटेनर्स को कैसे वॉश करूं, कितना सैनिटाइज करूं या नहीं करूं, क्योंकि वो खाना भी है। Okay, so I think these are very important key questions which Anup has raised. So you know, अब पहली चीज मैं क्लियर करूं, जो वैक्सीन है, हमने वैक्सीनेट कर लिया अपने आप को, but that vaccine is not restricting a virus entry into our mouth or nostrils.
that vaccine is trying to prevent, the guy who's vaccinated is trying to prevent that person from the multiplication of this virus inside. So that means the severity of disease or expression of the disease in that person would be halted or would be mitigated. वो कम हो जाएगा उसका ग्रेविटी, बट पूरी तरह से शायद ना जाए. सिवेरिटी को जरूर कम करता है, आईसीयू एडमिशंस और मोर्टेलिटी में फायदा करता है वैक्सीन, बट वो वायरस फिर भी उस पर्सन के माउथ और नॉस्ट्रिल में हार्बर कर सकता है. सो मतलब क्या हुआ, जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है, ही स्टिल कैन बी अ सोर्स ऑफ गिविंग दैट वायरस टू समबडी एल्स हु इज इन द क्लोज विसिनिटी, राइट. तो जो उसके आसपास है उनको वो वायरस दे सकता है. तो इसलिए जो सामने वाले लोग हैं, और अगर वो सब ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है, बिकॉज वैक्सीन से वायरस का मल्टीप्लिकेशन एयर के अंदर या क्रॉस इन्फेक्टिविटी को कम नहीं कर रहा है, वो उसका एक्सप्रेशन उस बंदे के अंदर कम कर रहा है जो वैक्सीनेटेड है. तो दूसरे लोग उससे कैसे बचेंगे? रास्ते वही हैं, मास्क, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना, और जितना डिस्टेंस और जो भी प्रिकॉशंस हम उस समय सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हो, वो साइक्ड अप्रोच नहीं है, वो कॉशियस अप्रोच है. और आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत है सबको ऐसा सोचने का, एंड दैट इटसेल्फ वुड ब्रेक द चेन. अगर मानिए उस वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में वायरस है और वो 4 बंदों को आगे देता है और वो आगे 10 को देते हैं, इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए? अगर वो सामने वाले लोग जो वायरस के साथ इन्फेक्टेड है पेशेंट, उसके आसपास उस चेन को रोक देते हैं और आगे आगे वो नहीं बढ़ती है. एंड दीज आर द मेथड्स. वियर मास्क्स. I think we are not going out of mask. We have to continue wearing for another year or so. COVID is really unpredictable. We may be in for 3rd, 4th, 5th waves also. And sanitize, keep the hygiene on. जो आपने एक और क्वेश्चन किया अनूप, हम छोटी सी छोटी चीज को टच करें, हैंडल को टच करें या चेयर को टच करें तो भी क्या करें, ये इनिशियल थॉट था. मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. इनिशियल एक थॉट था ये वायरस फॉमिट्स की तरह भी फैलता है, बट बाद में बहुत सारे जर्नल्स ने इसको रिफ्यूट करना शुरू किया. रादर देन फॉमिट्स, इट इज एक्चुअली ट्रांसमिसिबल एयरबॉर्न. वो एयर किसी के माउथ से निकल के एयर में आया और एयर से दूसरे पर्सन को इन्फेक्टिव कर गया, बट फॉमिट्स की तरह अब वो नहीं फैल रहा है. सो आई थिंक वी कैन बी लिटिल बिट रिलैक्स्ड इन टचिंग the things which are around us. Still it's okay, but once we shake hand with somebody, once we touch somebody, then I think it's worthwhile sanitizing your hands and keep your mask on. Right. So Dr. Vijay, your inputs on this. See, what Dr. Rajneesh has said, it's absolutely, the scientific approach at the moment. Now, later stage, what are the new discoveries and new theories come, but currently even if we have been vaccinated, mask is compulsory for all of us. Mask we should use. We should still try to maintain that 2 गज की दूरी, वो बहुत जरूरी है. और मास्क चाहे वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ, वैक्सीनेशन मुझे हो भी गया तब भी मुझे मास्क पहनना चाहिए, because if the virus enters into my body, it may not damage me, but I can infect other people. So mask is still what Dr. Rajneesh has said, maybe for another 1 year or so, we do not know about the virus at the moment. So the medical scientists are working on it, and let's see how the virus behaves in the near future. Right. So 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और वैक्सीनेशन हो गया है तब भी और नहीं हुआ है तब भी. तो वैक्सीनेशन भी है जरूरी. जी बिल्कुल. कुछ लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, उनके अंदर भ्रांति फैल रखी है. I will request everyone to please go ahead and get themselves vaccinated. There is no no harm at all. It is going to save us. In our campus, many doctors who had vaccinated themselves, they got COVID, but वैक्सीनेशन होने से एक प्रोटेक्शन उनको बहुत बड़ा मिल गया. सीवियरिटी नहीं भी, फिर कोविड उनको जरूर हुआ लेकिन सीवियरिटी नहीं हुई. तो कुछ लोगों में जिनमें वैक्सीनेशन से डर है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वैक्सीनेशन जरूर करें.
suggest that ये जो अभी जैसे when you are done with both the doses, do you suggest people to go for antibodies test to check whether the antibodies have been developed or not? वो आप recommend करते हैं या उसकी इतनी जरूरत नहीं है? वैसे इतनी जरूरत है नहीं, 99% केसेस में एंटीबॉडीज बन रही हैं, लेकिन ये भी है, डिपेंड कर रहा है, किसी के शरीर में कम बन रही हैं, किसी के शरीर में ज्यादा बन रही हैं। बट जो अभी तक की जो रिसर्च आई है उसमें ये कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स तो एंटीबॉडीज शरीर में रहेंगी। उसके बाद अभी 4-5 महीने के बाद अभी कोई इस तरह का नहीं आया, लेकिन 4-5 महीने के बाद फिर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट 4 मंथ तक का तो अभी रिकॉर्ड है कि वैक्सीनेशन लेने से एंटीबॉडीज बनी हुई है। बहुत रेयर केस में हुआ है कोई बूस्टर डोज भी आ सकता है, थर्ड डोज हो सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बहुत रेयर केस में हुआ है कि लोगों ने वैक्सीन ली और एंटीबॉडी नहीं बनी, बहुत रेयर केस हुए, लेकिन हैं इस तरह के केस भी हैं। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं अनूप, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, कुछ बहुत यंग डॉक्टर्स हमने लूज किए हैं कोविड सेकेंड वेव में, एंड ऑल ऑफ एज यू नो मेडिकल प्रोफेशनल्स वर वैक्सीनेटेड एट द फर्स्ट गो, एज अ प्रायोरिटी. So, but there were few doctors, I won't name them, but very big names, we have lost, and all of them were vaccinated. So almost there are 20 doctors, 20 names like this. So now that question comes, as Dr. Dasmana is saying, there are few people where there is not a good, reasonable antibody response to a vaccine. So those were those kind of patients who got exposure while treating patients, and there was no substantial antibody response, so they got infected and the severity was higher, so we lost them. So now the next thing, but I think on the charts, see, initially we are still struggling to vaccinate the major chunk of Indian population, but having done that, the next issue is going to come that in a year or so we will require the booster dosages. And America is already talking of that, because the Delta variant is now making the case numbers going up in many states in America, and they are already talking of a Pfizer booster in those states where case numbers are going up. हमारे ऑडियंस के लिए अवेलेबल हुए, वी आर सो थैंकफुल टू यू. Thank you, sir, and thank you, Dr. Rajneesh and Dr. Vijay, and to you. And I'm seriously saying this. I was very keen to be part of this because मैं अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में बात करूं, लेकिन आप लोगों से ये बातें सुनना बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं, because that's what we are practicing. And for us, I have always believed that trust your doctors, trust your medical professionals, as Dr. Vijay said, trust your researchers. So thank you so much for including me in this panel. Thank you, sir, and good luck and stay safe. Thank you, Anup. Thank you. Privilege was all ours, and thank you for joining. And it was really overwhelming to sit with you and on this panel. Thank you. Same here, sir. Same here. Good luck. Thank you. Bye bye.